So now we are going to do questions on graphs of quadratic equation. ठीक है, questions on graphs of quadratic equation. For example, my first question is y is equal to x square minus 3x plus 3. Okay, now y is equal to x square minus 3x plus 3. Now सबसे पहले I will check the value of a. Now if I compare with y is equal to ax square plus bx plus c, I need to understand that here my a is 1, therefore I can say that a is greater than 0. Now a is greater than 0 ka there were three conditions. The first condition is if a is greater than 0, then I'll check for b square minus 4ac. If b square minus 4ac is greater than 0, it will be cutting the x axis at two different points to two distinct roots. एक कंडीशन है when it is equal to 0, मतलब it will touch the x axis, and एक है b square minus 4ac is less than 0, मतलब it will not touch, it will be above the x axis. This is on the condition when a is positive. a is positive, इसका तीन कंडीशन है. अब यहाँ पे मुझे मिल गया a is greater than 0. Let's find out b square minus 4ac. अब अगर मैंने b square minus 4ac find out किया, this will become 9 minus, this will become b square which is 9 minus 4 into 1 into 3. So I know that b square minus 4ac, this value will give you minus 3. Therefore b square minus 4ac is less than 0. मतलब मुझे ये मालूम है कि ये x एक्सिस के ऊपर रहेगा. This will not cut the x axis, this will not touch the x axis, this will be above the axis. अब इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा? मुझे ये तो मालूम करना चाहिए कि इसका वर्टेक्स क्या होगा. Now if you remember in the last class when we were doing graphs, I told you first method of finding the vertex is basically I will find x is equal to minus b by 2a. X is equal to minus b by 2a. So I will write x is equal to minus of minus 3 upon 2 times 1. So x will become 3 by 2. And then I will substitute 3 by 2 in the main question. So this will become 3 by 2 the whole square minus 3 into 3 by 2 plus 3, which will become 9 by 4 minus 9 by 2 plus 3. Now if I substitute this further, I'll substitute to 9 by 4 minus 9 by 9 by 4 minus 9 by 2 becomes minus 9 by 4. So this will become minus 9 by 4 plus 3. So y will become 3 by 4. So if I have to plot a graph, my graph would look something like this. It will be like this. And this is your vertex. That is 3 by 2, 3 by 4. एंड अगर किसी ने पूछा कि इसका रेंज क्या है, तो रेंज स्टार्ट हो रहा है 3 बाई, रेंज मतलब y, वैल्यू ऑफ y. सो वो 3 by 4 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग अप टिल इंफिनिटी. This is the value when it is going from 3 by 4 to infinity, depending on the data कि मेरा a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. और जैसे ही मुझे पता चल गया a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, a पॉजिटिव मिल गया, I will find the discriminant under three conditions. Here the discriminant is less than 0, मतलब it will be above the x axis. This is how my graph will look like. And अगर range पूछे है मतलब value of y and the lowest value of y is 3 by 4, और ये ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है, मतलब it will end at infinity. Has everybody understood this? So this is how you find the range of a quadratic equation when the range is given to you. Now this is the data that is given, that is 3 by 4 to infinity. अब अगर ये नहीं click हुआ, so you can solve by this method, where my method 2 tells you directly find the derivative. So इसका differentiation will become 2x minus 3. You equate the first derivative, find the root to 0, so x will become 3 by 2. And जैसे x 3 by 2 हो गया, you substitute the value, this will become y is equal to 3 by 4, and your range would be from 3 by 4 to infinity.
Has everybody understood this? So this is how you solve these kind of sums. जब सबसे पहले and the most important part is you have to find the range. अब इसके आगे कोई भी फंक्शन रहेगा, that is also fine. The main crux is मुझे quadratic equation दिया है, I have to find the range of the quadratic equation. So this is the range that I have got, okay, and the graph is about the x-axis. Okay, next, if they have given, say for example, my next question is कि f of x is given as 3x square plus 4x plus 5. 3x square plus 4x plus 5. सबसे पहले I'll write y is equal to 3x square plus 4x plus 5. When I compare it with ax square plus bx plus c, where a is greater than 0. Okay, a is greater than 0 मतलब अब मुझे next step है, मुझे discriminant find out करना है. Then I will find out b square minus 4ac, which is b square is 16 minus 4 into 3 into 5. I know 4 times 5 is 20 times 6 is 60. This is going to be negative. मतलब b square minus 4ac is less than 0. About the x-axis. कैसे पता चला? a positive है, a का value 3 है, and I know that like the previous sum, I know that my value, my discriminant is negative. My graph will be about the x-axis. Now if I differentiate this and I solve कि what is the range going to be? Okay, range निकालते हैं इसका भी range निकालेंगे वापस. So now you can solve by directly derivative, that is dy by dx will become 6x plus 4. dy by dx is equal to 6x plus 4. 6x plus 4 is equal to 0. X is equal to minus 2 by 3. And if I substitute minus 2 by 3 here, this will become y is equal to 3 into minus 2 by 3 the whole square plus 4 into minus 2 by 3 plus 5 is equal to, this will become minus 2 by 3 minus 8 by 3 plus 5 minus 10 by 3 plus 5. If I take the LCM, so minus 10 plus 15, and my answer will become 5 by 3. So my y का value has become 5 by 3. 5 by 3 बराबर है ना? कुछ गलत तो नहीं है? 5 3 is 15. This is positive. Sorry, my bad guys. ये positive रहेगा. अगर ये positive है, so this will become minus 6. Minus 6 by 3 2. This will become 15. 4. क्या 4 4 हो जाएगा 4. Yes, this is 4. Sorry, my bad. 4. तो minus 4 by 3 11. तो 11 by 3. So now so again the graph is going to look like this. But यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, रुको, ऐसे होगा. So if I have to show the graph, यहाँ पे होगा somewhere, it will be like this. So if I draw this, तो मुझे पता है कि इसका भी range होगा. Basically my x का value is minus 2 by 3 and this will become 11 by 3. If I have to find the range, my range is going to be from 11 by 3 to infinity. अब अगर मैंने बोला कि अच्छा ग्राफ ऐसे लिख रहा है, let me find out at which point is the graph cutting the y-axis. So in this question किसी ने बोला what is the y-intercept, that is c. तो कुछ नहीं करूँगा. तो अगर मुझे बोला कि what is f of 0 का वैल्यू, f of 0 मतलब f of 0 का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा. If I substitute here, so y will become 0 plus 0 plus 5. So y will become 5. So this is the point guys, 0, 5. So this graph जो second quadrant में रहेगा, it will touch the x-axis. It will cut the y-axis at the point 0, 5. Anybody has any doubts here? अब अगर किसी ने बोला ठीक है ये हो गया, तो tell me the value of f of, हो गया 3x square plus 4x plus 5. ठीक है. अब if I substitute here कि okay what is f of 1 का value,
कुछ नहीं करना है. f of 1 का वैल्यू, if this is the question, it will become 3 plus 4 plus 5. Therefore f of 1 का वैल्यू will be 5 6 7 8 9 10 11 12. This is f of 1 का वैल्यू, and on this basis we can find any of the values. ठीक है, किसी ने बोला what is f of minus 2 का वैल्यू, ऐसी रैंडम वैल्यूज बेटे. इफ समवन आस्क व्हाट इज f of minus 2 का वैल्यू, तो इसको कुछ नहीं करना है. आई विल डू 3 times minus 2 square plus 4 times minus 2 plus 5. So this will become 12 minus 8 plus 5. So 12 minus 8 plus 5 will become 9. So f of minus 2 ka value is 9. Has everybody understood this? So it all depends on what is the graph given to you, what is the value, और मेरा range तो मुझे पता है कि 11/3 to infinity. Okay. Now next question. Number of solution, okay, of the question sin x is equal to 3x square plus 4x plus 5. Okay, 3x square plus 4x plus 5. See this, 3x square plus 4x plus 5. This is how my graph is going to look like. Okay, number of solution with 3x square plus 4x plus 5 minus 2/3, 11/3 is your range. यहाँ पे है number of solution. Number of solution मतलब at how many points will sin x का graph and 3x square plus 4x plus 5 का graph touch each other. Now for that मुझे sin x का graph पहले देखना पड़ेगा, and 3x square plus 4x plus 5 हम लोग ने बनाया था. Let's approach the sum, and this will test your concept कि मुझे पता है कि मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा. आई ड्रॉ इट हियर, थोड़ा बड़ा बनाएंगे. ठीक है, इमेजिन आई स्टार्ट विद दिस इज द ग्राफ. ओके, समझो ऐसा करूँगा. दिस इज हाउ माई ग्राफ इज गोइंग टू लुक. ठीक है, ये मेरा ग्राफ रहेगा. दिस विल गो लाइक दिस. ओके, ये ऐसा रहेगा. फॉर आवर कन्वीनियंस इसको हम लेंगे +1. This I am taking it as +1 because we know that sine ka graph is from -1 to 1. That is the range. Okay, that is the range. And guys, this is the value that is -1. तो मेरा sin x का ग्राफ बन गया. Okay, this is the sin x का ग्राफ. No, this is my sin x का ग्राफ. ओके, मतलब माई रेंज यहाँ पे लिखूंगा रेंज ऑफ साइन एक्स रहेगा फ्रॉम -1 to +1. वी ऑल नो दिस, फिजिक्स में बहुत बार किया है, ट्रिग्नोमेट्री में किया कि रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम -1 to 1. प्रॉब्लम क्या है पता है? लुक एट दिस, द रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11/3 to infinity because in the previous sum exactly सेम चीज किया. So in the second quadrant, if I try to get 11/3 to infinity, this is how. If I make it like this, ये देखो, ये ऐसे होएगा. ये है, this is the point. X coordinate छोड़ दो, whatever is the x coordinate. ये देखो, वी आर लुकिंग एट द रेंज. अभी अगर x कोऑर्डिनेट -2/3 आ गया मुझे, कॉमा 11/3, you know, I know, if I divide 11/3 my answer is going to be 3.6666, 3.67. इसका आंसर है 3.67. इसका आंसर है फ्रॉम -1 to 1. There is no chance that these two graphs are going to be intersecting. So since there will be no intersection, there is no intersection. So when they ask a number of intersection, number of solution, so I will say that there is no solution. नो सोल्यूशन होगा बिकॉज मुझे पता है कि पहले का जो ग्राफ है जो हमने प्रीवियस समय किया था, सेम क्वेश्चन है. द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, इसका रेंज
okay, and range of 3x square plus 4x plus 5 is 11 by 3 to infinity. एक है -1 to 1, दूसरा है 11 by 3 to infinity. दोनों को एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं. Hence there is going to be no solution. Has everybody understood this? So whatever graph we have done, it all depends and it all boils down to whether your A is positive or negative and whether your discriminant is less, equal or greater than 0. If we continue with the next sum, where the question has been given is ki range of, okay, a direct question, range of ln 3x square plus 4x plus 5. सेम क्वेश्चन. पहले हमने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का रेंज निकाला, फिर sin x को 3x स्क्वायर प्लस 4x के प्लस 5 के साथ कंपेयर किया. नाउ आई एम फाइंडिंग द रेंज ऑफ ln ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो कैसे करेंगे, देखो, आई टेक y इज इक्वल टू ln ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. लेंदी मेथड होगा. टेक ln ऑन वन साइड, e रेज टू y आएगा, फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac. वेरी लेंदी मेथड, वेरी लेंदी. इट्स नॉट दैट यू कांट डू इट, बट ईजियर वे. हम लोग सबसे पहले इसका रेंज निकालेंगे. एंड वी नो दैट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको अगर m ले लिया तो इसका रेंज होगा, एंड वी हैव डन इन द प्रीवियस टू सम्स, दैट रेंज इज गोइंग टू बी 11 by 3 to infinity. 11 by 3 to infinity. Now if they have given 11 by 3 to infinity, but ये तो सिर्फ इसका रेंज है. मुझे क्वेश्चन पूछा है y इज इक्वल टू ln 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर आ गया, सिंस इसके आगे ln है, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर एज ln ऑफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी देयरफॉर द रेंज इज गोइंग टू बी range of ln of 3x square plus 4x plus 5 is going to be ln 11 by 3 to infinity. You can check the question. You can check this and you'll get the same answer, that my answer is going to be ln of 11 by 3 to infinity. कुछ नहीं किया, since function के आगे ln था, मैंने function जो भी function था उसका range निकाला, and since it was a log to the base function, in front of the answer I have written log to the base, and ln infinity, as we know that it is basically the same, that we'll write it as infinity. Has everybody understood this? So small things you don't have to solve. Now usually हम लोग सब लोग कैसे solve करते थे, we used to write it like this कि e raised to y is equal to 3x square plus 4x plus 5. Therefore this will become 3x square plus 4x plus 5 minus e raised to y is equal to 0. इन रिलेशन फंक्शन, इन फंक्शन जो किया था कि नाउ आई फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस, देखो तो बहुत लंबा मेथड हो गया, बट लुक एट दिस. तो यू कैन सॉल्व, दिस इज मेथड 2, बट टू मच ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टू मच. नाउ दैट वी हैव गुड आइडिया अबाउट what my value of a is and how my graph will look like along with the roots, minus b by 2a, how I am going to solve it, I can derivate it, equate it to 0, find the root and substitute in the main question, I will get the same answer. Has everybody understood? So you can try by this method, no problem. देखो यहाँ पे b क्या है 16 minus 4 into 3 into, and c is 5 minus e raised to y is greater than equal to 0. एक्सपोनेंशियल है तो ln में आंसर आएगा, मुझे पता है. इसको सॉल्व करो, you will get exactly the same answer. You will get exactly the same answer and you will understand कि ठीक है एक्सपोनेंशियल है तो मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ वो ऐसे रहता है और वो इन्फिनिटी पे टच करेगा, मतलब लास्ट में इन्फिनिटी आएगा. which is my answer is correct. Anybody has any doubts here? अब समझो यहाँ पे ln डाल दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल रेंज ऑफ 1 upon 3x square plus 4x plus 5. Imagine same question से how my answer changes. Range of 1 upon 3x square plus 4x plus 5. अपने को पता है कि 3x square plus 4x plus 5 का आंसर क्या है. So first I will write कि range of 3x square plus 4x plus 5 is 11 by 3 to infinity. ठीक है, रेसिप्रोकल है. प्रीवियस सम में ln था तो दोनों साइड ln लगा दिया. करंट सम में रेसिप्रोकल है.
अब अगर मैंने रेसिप्रोकल लगाया तो 11/3 का रेसिप्रोकल विल बिकम 3/11. The problem is not the first term, the problem is the second term. The reciprocal of infinity will become 1 upon infinity, and 1 upon infinity is nothing but 0. अब देखो infinity include नहीं हो रहा है. Be very careful. This is where you have to be very careful here. अब we know, I know, everybody knows. छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू को डिनोट करते हैं. डोमेन हो गया, रेंज हो गया. We never write from 3 to 1. We write from 1 to 3. 0 to infinity. Infinity to 0 कभी नहीं आता. So you have to be very careful. Careful in what way? When you take the reciprocal, अब देखो, therefore I will write it, range of 1 upon 3x square plus 4x plus 5. Guys, 3x square plus, अब इसका हो जाएगा, I will write it like this, 1 upon 11/3 comma 1 upon infinity for our understanding. ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में डायरेक्टली. आई नो दैट यू कैन राइट इट, बट अगर रेसिप्रोकल ले लिया सो ये ऐसे हो जाएगा. देखो 3/11 कॉमा 0, तो प्रॉब्लम हो गया. एज आई जस्ट सेड, छोटे से बड़ा जाते हैं, बड़े से छोटा कभी नहीं जाते. रेंज कभी उल्टा नहीं हो सकते, डोमेन कभी उल्टा नहीं हो सकते, छोटे से बड़ा नहीं होता है. सो आई चेंज द आंसर कि दिस विल बिकम फ्रॉम 0 to 3/11. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज हाउ वी गो कि इसका आंसर विल बिकम 0 to 3/11. अच्छा, 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड. अब कोई बोलेगा 0 क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? अगर मैंने y को y की जगह डाल दिया तो सेकेंड मेथड, आई एम टेलिंग यू, ट्राई बाय दिस मेथड. y इज इक्वल टू 1 upon 3x square plus 4x plus 5. Take everything on one side, find b square minus 4ac greater than, you get this answer. So there are two ways of solving it. One by this method that we have just learned, one by the method that we have done in this lecture, functions. Functions में domain range निकाल रहे. We are finding the range of these equations. So this is the answer that I have got, the range of 1 upon 3x square plus 4x plus 5. Okay. Now next, ln हो गया. इंटरसेक्शन देखा, इंटरसेक्शन कुछ नहीं हुआ. रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल का आंसर चेंज हो गया. नाउ इफ आई फाइंड साइन ऑफ 3x square plus 4x plus 5, can anyone tell me इसका रेंज क्या होगा? -1 to 1. Anything else? Will it be -1 to 1 कि 11/3 sin 11/3 to sin infinity? Anything else? देखो बाहर साइन है, आई नो यू नो, साइन के अंदर कुछ भी होने दो, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 to 1. तो बोलो इसका रेंज क्या रहेगा? -1 to 1. वेरी गुड. सो साइन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. साइन क्या बोलेगा? कोई भी नंबर ले लो अंदर, कुछ भी ले लो. आई एम गोइंग टू गो मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम -1, बिकॉज साइन का रेंज, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. तुम एक्स की जगह कुछ भी डालो, 1000 डालो, 10,000 डालो, एक्स का वैल्यू -1 डालो, एक्स का वैल्यू -10 डालो, एक्स का वैल्यू -100 डालो. My answer will for range for sin x is going to be from -1 to 1. ठीक है, range will always be from -1 to 1. Okay, next, y is equal to under root of a square minus x square. I have to find the range for it. Can you tell me how will you find the range for it? One method is the normal method that we solve. कैसे करेंगे? b square minus 4ac square both sides b square minus 4ac. Can anyone tell me which is this geometrical figure? This is a circle. Very good. Y square is equal to a square minus x square. Therefore x square plus y square is equal to a square. ये बन गया अपना सर्कल. तो चलो सर्कल बनाते हैं. यहाँ पे बना दो, ये मेरा सर्कल बन गया. This is your circle. Okay. ये हो गया मेरा सर्कल. अब मुझे पूछा है रेंज. मुझे पूछा है रेंज मतलब सर्कल कहाँ तक है. सर्कल है रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट. माई रेडियस इज ए. इज माई रेडियस ए? यस नो? माई रेडियस इज ए. अगर रेडियस ए है और
this is 0 comma 0, so this will become what? A comma 0 minus A comma 0, 0 comma A, 0 comma minus A. Has everybody understood this? तो मुझे देख के मालूम पड़ रहा है कि my range is going to be from this to this और this to this. तो रेंज मतलब वो बाउंडेड है, ओपन नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये सर्कल है. क्वेश्चन क्या है? हाँ सर्कल है, सॉरी. हाँ तो मुझे पता है मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, रेंज रहेगा बिकॉज अगर मैंने y का वैल्यू डाल दिया तो ऑब्वियसली रूट है, तो माई रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 टू a. माई रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 टू a. तो 0 हो सकता है ऑफकोर्स. अगर y का वैल्यू 0 डाल दिया तो x विल बिकम a. अगर y का वैल्यू a डाल दिया तो x will become 0. Perfect. So I know that my range is going to be from minus a to 0 to a. Has everybody understood this? तो ये मेरा रेंज रहेगा बिकॉज रूट के अंदर है. स्क्वायरिंग कर दिया तो ऑब्वियसली मेरा आंसर y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा. इवन इफ आई टेक नेगेटिव वैल्यू माई y इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव. हेंस माई रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 टू a. एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो एक थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन. ओके लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. थोड़ा अलग क्योंकि वही टाइप क्वेश्चन कर रहे थे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. लेट्स डेरिवेट इट. सो आई विल गेट dy by dx is equal to 2x plus 1. Guys, my first derivative is equal to 0. x का वैल्यू मिल गया माइनस हाफ. अब मैंने जब माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा गाइज माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ प्लस वन विच विल बिकम 1/4 प्लस हाफ. एंड 1/4 प्लस हाफ will give you 3/4. And I know that my range is going to be from 3/4 to infinity. So my range is going to be from 3/4 to infinity. But अगर ये क्वेश्चन के आगे okay I have to ask for the range. Okay ये हो जाएगा x y is equal to x square plus x plus 1 and this is going to be from minus half from 3/4 to infinity. Anybody has any doubts here? सब लोगों को समझा? So this sums up how to find the range when values are given, when a quadratic equation is given, when range is given. साइन का वैल्यू दे दिया, कॉस का वैल्यू दे दिया, या एक्सपोनेंशियल दे दिया, या लॉग दे दिया, ln दे दिया. हाउ डू वी प्रोसीड, ये बहुत मैटर करता है. ओके नाउ इफ y is equal to x square plus kx minus x plus 9 is above x-axis. Okay, is above x-axis. Find interval of k. It is above x-axis. मुझे बोला है कि इट इज अबव एक्स एक्सिस, फाइंड द इंटरवल ऑफ के. अब इट गेट्स मी थिंकिंग. सबसे पहले मेरा नजर जाएगा कि मेरा ए क्या है. ओके अबव एक्स एक्सिस बोला है, सो आई विल राइट सबसे फर्स्ट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन 0. सेकेंड पॉइंट डी इज लेस देन 0. अबव एक्स एक्सिस कंडीशन है दैट माई रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. स्ट्रेस ही नहीं है. d का वैल्यू मुझे पता है, d is b square minus 4ac. So if I solve here, therefore I'll write here, therefore b square minus 4ac is less than 0. Guys, in the question I know that a is 1, b is k minus 1. तो थोड़ा ना अच्छे से लिख देते हैं क्वेश्चन. सो ये हो जाएगा y is equal to x square plus x k minus 1 plus 9. A is equal to 1, B is equal to k minus 1, C is equal to 9. So B will become k minus 1 the whole square 4 into A into C is less than 0. So k square plus 1 minus 2k minus 36 less than 0.
k square minus 2k minus 35 less than 0, k minus 7, k plus 5 less than 0. So if I plot, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 7, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, मेरा स्पीड बम्प आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, लेस देन मतलब इट विल बी, माई वैल्यू विल बी फ्रॉम -5 to 7, नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड क्यों? बिकॉज यहाँ पे आई हैव रिटन b square minus 4ac is less than 0. So the range of k is going to be from -5 to 7. Has everybody understood this? Is there anyone who's not understood this? So ये हमने क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटीज में किया था, एंड दिस इज व्हाट आई सॉल्व, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि चीख चीख के बोल रहा है कि दिस इज अबव एक्स एक्सिस, और अबव एक्स एक्सिस का मतलब है मेरा ए पॉजिटिव है और मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? सो if f of x is equal to x square plus 4x plus 1, okay, then f of x greater than 1 for what values? f of x दिए x square plus 4x plus 1, f of x is greater than 1 दिए, ठीक है. It gets me thinking कि अच्छा f of x is greater than 1 चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, बट ये कंडीशन थोड़ा अलग कंडीशन. अभी तक वी हैव नॉट कम अक्रॉस कि f of x is greater than 1, बट f of x का वैल्यू दिया है, एंड f of x का वैल्यू दिया है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x square plus 4x plus 1 greater than 1, x square plus 4x plus 1 minus 1 greater than 0. ये निकला, ये निकला. x square plus 4x greater than 0, मैंने x कॉमन ले लिया, x plus 4 greater than 0. गाइस मुझे दो रूट दिख रहा है, ये है मेरा दो रूट, माई टू रूट्स आर 0 एंड -4 एंड 0. तो मैंने यहाँ पे -4 चिपका है, यहाँ पे 0 चिपका है, ये है प्लस इन्फिनिटी. गाइस ये हो गया मेरा माइनस इन्फिनिटी. स्पीड बम बना, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस. दिख रहा है ग्रेटर देन दिया है, अभी ग्रेटर देन दिया है मतलब दिस इज द पार्ट वेर इट इज ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, दिस इज द पार्ट दैट इज पॉजिटिव. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी -इन्फिनिटी to -4 union 0 to infinity. -infinity to -4 union 0 to infinity. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? ठीक है, start writing everyone till here. Now if f of x is equal to ax square plus bx plus c have no real roots, then have no real roots, then option a plus b plus c greater than 0, option b a into a plus b plus c greater than 0, option c b into a plus b plus c greater than 0, and option d c into a plus b plus c greater than 0. Not a very specific question, very smart question, very good question, where they have said that f of x is equal to ax square plus bx plus c has no real roots. मतलब my roots are imaginary. मतलब b square minus 4ac is less than 0. मतलब या तो वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या तो x एक्सिस के बिलो लाई करेगा, बिकॉज दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट a, b या c. So when they said that they have no real roots,
इससे मुझे दो ही चीज़ पता लगती कि या तो मेरा ग्राफ ऐसे होगा, my graph will be like this and my graph will be like this. You get an idea that we don't know whether A is positive or negative. सबसे पहले बोला है what do you understand by A plus B plus C greater than 0? They have no real root. ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. Now they have not said anything about it. Okay, but सब में आया है वैल्यू A plus B plus C. Okay, A plus B plus C. Now it gets me thinking कि f of x is ax square plus bx plus c. When will ax square plus bx plus c become a plus b plus c? It is only possible when x is equal to 1. So f of 1 will become a plus b plus c. f of 1 मतलब when x is equal to 1. अब प्रॉब्लम क्या है, x is equal to 1 यहाँ पे रहेगा, तो ये भी y का वैल्यू हो सकता है एंड ये भी y का वैल्यू हो सकता है. तो x is equal to 1, x is positive. You know, I know that x is positive in the first quadrant, x is positive in the fourth quadrant. Y on the other hand is positive in the first quadrant but it is negative in the fourth quadrant. तो पूरा मारा मारी है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सो इफ आई कंसिडर a plus b plus c is positive, ठीक है, a plus b plus c पॉजिटिव है when x is equal to 1. If a plus b plus c is positive, the first thing I understand is कि f of 1 is equal to a plus b plus c. Now since f of 1 is equal to a plus b plus c, मुझे पता है कि a plus b plus c will be positive. सबसे पहले देखो, या तो a plus b plus c पॉजिटिव है, ओके, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, बिकॉज a plus b plus c is positive. But if I tell you कि let's take a condition where a is also positive and let's take a condition where a is negative. अगर a पॉजिटिव है तो इट इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अभी सुनो ध्यान से, तो a पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव है, सो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी विल बी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विच इज पॉजिटिव. a को पॉजिटिव ले लिया, a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, ओके, a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, सो a पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, तो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव रहेगा. बट अगर किसी ने बोला कि नहीं, व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव, बट आंसर इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर पॉजिटिव हो गया तो ये सेटिस्फाई कर दिया, बट बोला नहीं, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नेगेटिव है, बिकॉज वी डोंट हैव a, वी डोंट हैव b, वी डोंट हैव c. तो मैंने बोला ठीक है, तो लेट्स टेक a प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव, लेट्स मल्टीप्लाई a इंटू ए प्लस बी प्लस सी. a is negative, a plus b plus c is negative, negative into negative is positive. So we just realize that अगर a positive है और a plus b plus c positive है, the product is going to be positive. और अगर a negative है, अगर a positive है और a plus b plus c positive है, तो मेरा आंसर positive होगा. अगर a negative है और a plus b plus c negative है, negative times negative is also positive. It means that my option B is correct. So I have taken A as positive, I have taken A plus B plus C as positive, I have got the answer as positive. I have taken A as negative, I have taken A plus B plus C as negative, negative into negative also gives you positive. अब first condition satisfied. अब second क्या बोला है, B into A plus B plus C. Now कितना भी try कर लो, you cannot determine B, you cannot find the value of B. b 0 होगा तो भी ये क्वाड्रेटिक है, b 1 होगा तो भी क्वाड्रेटिक है, b -1 है तो भी क्वाड्रेटिक है, b 10 है तो भी क्वाड्रेटिक है, b नहीं है तो भी क्वाड्रेटिक है, b है तो भी क्वाड्रेटिक है, बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ a. अब a में ना अगर मैंने a को 0 ले लिया तो ये लीनियर बन जाएगा. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन b. तो रिमेंबर दिस, ये ना इसमें देयर इज अ रीजन दैट वी कैन नॉट
डिटरमाइन बी, क्योंकि चलो मैंने बी को निकाल दिया. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल से इज ये तो क्वाड्रेटिक है. मैंने बी को निकाल दिया. बी को निकालने से कुछ फायदा भी नहीं हुआ. बी को निकाल दिया मतलब ये क्वाड्रेटिक है. यू नो, आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक. सो सिंस इट इज क्वाड्रेटिक, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट. सो यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज क्वाड्रेटिक. अब लेट्स लुक एट सी. अब सी क्या होता है? सी इज द पॉइंट which cuts the axis, the y-intercept. C is your y-intercept. Y-intercept कब मिलता है? When I put x का वैल्यू as 0. अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया, अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो I will get f of x is equal to c. और यहाँ पे भी अगर x का वैल्यू 0 डाल दिया, अब अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो यहाँ पे कट करेगा. अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो यहाँ पे कट करेगा. मतलब I will either get the value of C as positive or I will get the value of C as negative. तो देखो, so I will write to find C, I will put x is equal to 0, C is equal to y intercept. अब देखो ध्यान से, C is equal to y intercept. तो देखो f of x क्या हो जाएगा? f of 0 will become C. f of 0 will become C. Okay, अगर f of 0 C है, तो अब देखो C या तो पॉजिटिव रहेगा, C या तो नेगेटिव रहेगा. अब गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, अगर C पॉजिटिव है और a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी C इंटू a प्लस बी प्लस सी? इट विल बी पॉजिटिव. एंड गाइस, अगर C नेगेटिव है और a प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव है, तो C into a plus b plus c will become negative times negative, which is positive. So I have understood that my option B and my option D both are correct because determining the value of a, अगर a change हो गया, obviously a plus b plus c change होगा. अगर c change हो, a plus b plus c को हमने solve किया है. Now this is a partially correct condition. a प्लस बी प्लस सी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये मार्क कर सकते हैं, ये पार्शियल राइट है. अगर ऐसे लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, तो एक ही साथ कंडीशन रहेगा एंड, तो वी कैन कंसिडर बोथ बिकॉज वी हैव नो डेटा इज गिवन टू अस, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो विल टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव. b का जरूरत नहीं है, c का भी वैल्यू नहीं दिया तो हैव टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड on that basis I have got a plus b plus c is either positive or negative. Has everybody understood this? So it's a very good question जहाँ पे a into a plus b find out करें और c into a plus b plus c find out करें. Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? Next, find the value of p find the value of p if vertex of parabola, ठीक है, if vertex of parabola y square is equal to x square plus 2px plus 13 lies at a distance of 5 from origin. ठीक है, अब सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा कर्व कैसे दिखेगा. मैं कर्व, obviously all the curves that we draw, it's a parabola. This will be doing parabola in detail. This is the parabola, this is the parabola. Okay, this is about the x axis. parabola का vertex जो सबसे lowest point रहता है वो vertex रहता है. Let's look at the question. Find the value of p if the vertex of a parabola. अब ये parabola दिया, y square दिया ना, y is equal to, sorry guys, हम क्वेश्चन लिखा मैंने y is equal to y square नहीं. It gets me thinking कि ये वर्ड देखा मैंने, अब मुझे वर्टेक्स निकालने आता है. लेट्स फाइंड आउट द वर्टेक्स. तो I'll write y is equal to x square plus 2px plus 13. Now you can find the vertex as minus b by 2a, that's up to you. You can find it by derivative, that's up to you. Easy part लग रहा है, हम लोग डेरिवेटिव निकाल देते हैं. अच्छा, माइनस बी बाई 2a से भी आ जाएगा आंसर. दिस विल बिकम 2x plus 2p, 2x plus 2p. Okay,
I'll equate 2x plus 2p is equal to 0. तो x is equal to minus p. तो मुझे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल गया. I have got वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट. Now I will substitute y में wherever there is x, I'll put minus p. So this will become p square plus minus 2p square plus 13. तो y will become 13 minus p square. चलो अच्छी बात है. I have got y का वैल्यू as 13 minus p square. See what I am going to do now. समझो मैंने पैराबोला बना दिया अच्छे से. ओके अब देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है. ओके कंसिडरिंग वी आर टेकिंग एनी वैल्यू, कुछ भी ले लो. ओके p स्क्वायर. अब p का वैल्यू मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मेरा p का वैल्यू क्या है, बट दे हैव सेड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग समथिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो एक काम करते हैं, हम लोग कहीं पे भी बना दो x नेगेटिव y नेगेटिव, तो फॉर आवर कन्वीनियंस विल ड्रॉ इट लाइक दिस. समझो ये लो, थोड़ा ऐसे ले लेते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज योर वर्टेक्स. माय वर्टेक्स इज माइनस p कॉमा 13 माइनस पी स्क्वायर. अब क्या बोला है, ये है मेरा 0,0. नाउ सी दिस. नाउ ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द ओरिजिन, इसको मैंने 5 ले लिया, इसको a ले लेंगे. सो दे हैव सेड दैट distance OA is 5. Now if I solve by distance formula, this will become 0 plus p the whole square plus 0 minus 13 plus p the whole square is equal to 5. अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा. जैसे ही मैंने स्क्वायर बोथ साइड्स कर लिया, p square plus p square minus 13 is equal to 25. 2p square is equal to कितना हो जाएगा 38. 2p square is equal to 38. बराबर है क्या, कुछ रॉन्ग किया क्या? अरे सॉरी, ये हो जाएगा p square plus p square minus 13 the whole square is equal to 25. होल स्क्वायर हो जाएगा. Now if I expand this, this will become p raised to 4 plus 169, p raised to 4 169. ये हो जाएगा 1326 minus 25 p square is equal to 25. Is this correct? p raised to 4 minus 26 p square minus 26 p square plus p square will become minus 25 p square. So this will become p raised to 4 minus 25 p square. 169 minus 25 becomes 144 plus 144 is equal to 0. 144 मतलब I will get p square minus 16 p square minus 9 is equal to 0. एंड जैसे मैंने इसको आगे सॉल्व किया, p square minus 16 p square minus 9 हो जाएगा. तो I will get either p square is equal to 16 or p square is equal to 9. p is equal to plus minus 4, p is equal to plus minus 3. So I've got p is equal to plus minus 4, p is equal to plus minus 3. Okay, you substitute the value here and you'll get the answer. So find the value of p. So I've got 4 values of p. So p can be 4, p can be minus 4, p can be 3 and p can be minus 3. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? सब लोगों को समझा ये? Okay. Now देखो याद रखो, डिस्टेंस बोल रहा है सामने से कि सॉल्व बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. एंड वंस यू सॉल्व बाय डिस्टेंस फॉर्मूला गेट एन आइडिया एज टू हाउ यू आर सपोज्ड टू प्रोसीड, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, नाउ लास्ट सम फॉर द डे, a very important sum, a very nice sum, very good sum. Okay, very important. You can put
5 stars for this question. Okay. Find all values of P. Find all values of P if, okay, please understand the question. If least value of P, if least value of f of x is equal to, if least value of f of x is equal to 4x square minus 4px plus p square minus 2p plus 2 on interval is equal to 3. Now listen, find all values of p if the least value on the interval 0 और 2 के बीच में जो interval है, it should be equal to 3. Now there's only one thing that I know, a positive है. We don't know a कौन से quadrant में है, but I know it is going to be above the x-axis. Now see, they have said x का value between 0 and 2. When I find the vertex P में आएगा, and अगर vertex P में आया, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, वो 2 से ग्रेटर रहेगा या वो 0 से लेस रहेगा. रिमेंबर दिस. पूरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसका वर्टेक्स निकालता है. आई शो दिस टू. चलो इसका ना वर्टेक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, बिकॉज वी नो डिफरेंशिएशन. दिस विल बिकम 8x माइनस 4p और ये पूरा 0 हो जाएगा. एंड अगर मैंने इसको इक्वेट टू 0 किया, I will get 8x minus 4p is equal to 0. So I will get x is equal to p by 2. I don't know whether it is lying between 0 and 2. What is the value of p? If I take value of p as 10, x will become 5. मतलब वो 2 से बड़ा है. If I take p का value as 1, तो x का value half है, मतलब it lies between this. और गलती से अगर मैंने p का वैल्यू नेगेटिव लिया, मैंने नेगेटिव 2 ले लिया, तो मेरा x का वैल्यू नेगेटिव 1 हो जाएगा. सो द क्वेश्चन सेज, ये अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है मेरा ग्राफ, इंटरवल के बीच में a इज ग्रेटर देन 0. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गाइस. देखो ये ऐसा है 0 to 2 के बीच में, देखो ये है 0 और ये है 2. ये मैंने ले लिया, दिस इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. अब सुनो, सिंस इट इज अबव x एक्सिस, इतना आई एम श्योर, सो दिस मीन्स दैट मेरा ग्राफ ऐसे हो सकता है, मेरा ग्राफ ऐसे हो सकता है और मेरा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है. सो माई ग्राफ विल हैव 3 कंडीशंस. या तो वो 0 से कम रहेगा, या तो वो 0 से 2 के बीच में रहेगा, या तो वो 2 से ग्रेटर रहेगा. वाई? प्रॉब्लम इज आई कांट फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हो गया. आई कांट फाइंड द वर्ड. सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव नेगेटिव है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है. बट मुझे पता है कि लीस्ट वैल्यू इंटरवल 0 to 2 इक्वल है. अभी टच करेगा नहीं करेगा अपने को क्वेश्चन के बाद फॉलो करेगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या वो 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, क्या वो 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, क्या वो राइट में लाई करेगा, क्या वो लेफ्ट में लाई करेगा. दिस गिव्स राइज टू 3 डिफरेंट कंडीशंस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स. दिस विल गिव राइज टू 3 कंडीशंस. दिस इज द कंडीशन जब वो 2 से ग्रेटर रहेगा, दिस इज द कंडीशन वो 0 to 2 के बीच में रहेगा, एंड दिस इज द कंडीशन जब वो 0 से लेस रहेगा. सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड द सम saying that, one minute, now
सबसे पहला विल टेक केस 1, सबसे सेफ केस। सबसे सेफ केस ये है, वर्टेक्स लाइज इन 0,2। सबसे सेफ केस है कि मुझे पता है कि मेरा जो वर्टेक्स है ये है मेरा वर्टेक्स, ठीक है, p/2। p/2 मतलब x का कोऑर्डिनेट बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे x दिए, तो वर्टेक्स लाइज इन 0,2। एक काम कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू मिल गया है, आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर, आई विल शो दिस टू यू आल्सो, कि अगर मैंने f ऑफ x में f ऑफ p/2 डाल दिया, सो दिस विल बिकम 4 इंटू p/2 द होल स्क्वायर माइनस 4p इंटू p/2 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, ठीक है। इफ आई सिंप्लीफाई इट, कुछ बहुत ही अलग वैल्यू आएगा, बट ठीक है चलो, दिस विल बिकम p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, p स्क्वायर निकल दिया, तो आई गेट 2 माइनस 2p। मेरा वर्टेक्स ऐसा दिखेगा। अब क्या बोले, वर्टेक्स लाइज इन 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट दिए, वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, देखो एक्स कोऑर्डिनेट दिए, तो व्हाट आई डू इज देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू, एक्स का वैल्यू है मेरे पास, ये देखो x का वैल्यू है, तो 0 लेस देन इक्वल टू p/2 लेस देन इक्वल टू 2, आई मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 4, तो p का वैल्यू मिल गया। p का वैल्यू मतलब इट विल लाई बिटवीन 0 to 4। अब अगर p का वैल्यू है 0 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, और मैंने f ऑफ p/2 भी निकाला, ठीक है। अब y इज बिकमिंग नथिंग बट, कैंसिल होता है ना, हाँ, y विल बिकम 2 माइनस 2p, 2 माइनस 2p है ना, 2 माइनस 2, ठीक है। अब अगर p का वैल्यू मैंने 0 और 4 के बीच में लाई किया, 0 और 4 के बीच में लाई किया, अगर कोई भी वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, p का वैल्यू वी कैन टेक 3 ले लें, ट्राई करते चलो। सो आई टेक 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 3, अभी 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 3, अब 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2p, देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब p इज इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है, अब p इज इक्वल टू माइनस हाफ पॉसिबल है क्या, p इज इक्वल टू माइनस हाफ इज नॉट पॉसिबल। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? p lies between 0 and 4, 0 and 4, अरे यस और नो, बट p का वैल्यू क्या आ रहा है, अब 0 और 4 के बीच में कभी माइनस हाफ आता है, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? अब देखो ना, यहाँ पे अपने को आया p 0,4, बट p का वैल्यू अगर माइनस हाफ आ रहा है, और यहाँ पे मैंने p का वैल्यू माइनस हाफ डाला, तो दिस डिफाइज द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स सेइंग दैट 0 लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ये कंडीशन की वर्टेक्स विल लाई बिटवीन 0 and 2 इज नॉट गोइंग टू हैपन। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, मेरा वर्टेक्स फाइंड आउट, ये देखो ये है वर्टेक्स, सुंदर वर्टेक्स, ये है हमारा सुंदर वर्टेक्स, डिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन थोड़ा अच्छा कंडीशन है, ग्रेटर देन 2। अब कोई बोलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इक्वल टू यहाँ पे लिया है, सो आई वुड टेल यू दैट ग्रेटर देन 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आई टेक दिस, p ऑफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन ले लेंगे, ग्रेटर p/2, सॉरी, यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे था p/2, ओके, सो वी कैन कंसिडर p/2 ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं बिकॉज इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो 2 पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, 2 पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैंने p/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया, तो आई गेट p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आई हैव गॉट p का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और एक और चीज़ है, आई जस्ट राइट इट, 0 सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन लिया है। ये कंडीशन के बाद सबसे पहले ये कंडीशन लिख लेंगे, इसके बाद ये लिखते हैं, चलो विल राइट एवरीथिंग टुगेदर हियर ऐसे, ठीक है।
अब ये आ गया, लेट्स कंपेयर टू द प्रीवियस थिंग। क्या किया हमने, ये कंसिडर किया, पी का वैल्यू आ गया, फिर हमने एक रैंडम वैल्यू लिया टू चेक वेदर दिस इज सेटिस्फाइंग और नॉट। अब p इज ग्रेटर देन 4 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब लीस्ट वैल्यू इज 2 बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, यू कैन टेक 3 ऑल्सो, यू कैन टेक 4 ऑल्सो, यू कैन टेक, सबसे छोटा वैल्यू 2 है मेरे पास। सो मुझे पता है कि अगर मैंने f ऑफ 2 फाइंड आउट किया, अच्छा f ऑफ 2 का वैल्यू क्या, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। कैन आई फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2? f ऑफ 2 का वैल्यू क्या रहेगा? Do I have f of 2 का वैल्यू? You don't have in the question. Is f of 2 का वैल्यू given to me by any chance? अगर f of 2 का वैल्यू, अगर मैंने f of 2 पूछता, मतलब x का वैल्यू 2 डाल दिया तो कुछ आएगा मेरे पास? Is there anything I can find out somewhere कि f of 2 क्या होगा? Anywhere can I find f of 2 का वैल्यू क्या होगा if I have to find f of 2? Anybody? Is there anything I can do f of 2 का वैल्यू? चलो ठीक है, एक काम करो, फॉरगेट दिस, ओके। हम लोग क्या लेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू लिया था हम लोग ने, व्हाट इज द वैल्यू दैट वी टुक? 3, 0 और 4 के बीच में, ठीक है। ग्रेटर देन 2 वैल्यू बोले ना, एक्स इज ग्रेटर देन, इसका वैल्यू हम लोग 3 ले लेंगे। अगर मैंने इसका भी वैल्यू 3 लिया, लेट्स फाइंड आउट एफ ऑफ 2। अब देखो मेरा एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड दिस आउट। व्हाट विल बी एफ ऑफ 2? दिस विल बिकम, एक्स का वैल्यू इज 2, 2 square is 4, 4 times 4 is 16, okay। तो हो जाएगा 16 माइनस 8p प्लस p स्क्वायर minus 2p plus 2 is equal to 3. Now if I solve this, p square minus 10p plus 15 is equal to 0. p square minus 10p plus 15 equal to 0. मुझे पता है कि मेरा रूट्स इरेशनल आने वाला है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मेरा रूट्स इरेशनल भी आ सकता है, क्या आएगा वो मैटर करता है। सो p विल बिकम माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर minus 4ac. Did you guys understand this? So p will become 10 plus minus 100 minus 60 becomes root 40. Can I write root 40 as 2 root 10? Any doubts here? Okay, अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। सो p का वैल्यू क्या रहेगा? 5 plus minus root 10. Now it means that I am getting two values of p. p is equal to 5 plus root 10 and p is equal to 5 minus root 10. Now guys, which is the value which will be greater than equal to 4? Root 10 is how much? 3 point something. And 5 minus root 10 क्या रहेगा फिर? 5 minus root 10 क्या रहेगा? 2 point something. तो do you think कि this will be greater than equal to 4? Yes, no? अरे obviously 5 है ना यहाँ पे। अगर 5 पहले से, अच्छा ये greater than रहेगा less than रहेगा? Less than. So this is greater than 4, तो ये satisfy करे तो this is the value that I take. This value I can't take. So I've got p का 1 value. So I've got p का 1 value, that is 5 plus minus root 10. Okay, next value. अब last condition क्या है कि p by 2 will be less than 0. अच्छा less than equal to ले लो, चलो less than equal to 0 मतलब p will be less than equal to 0. ये third condition है guys, ये देखो थर्ड कंडीशन, ये वाला देखो, ये यहाँ पे रहेगा, इट विल बी लेस देन 0. तो दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन गाइस, दिस इज माय सेकंड कंडीशन एंड गाइस दिस इज माय थर्ड कंडीशन.
सो फर्स्ट कंडीशन है वो 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन है 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है। एक्चुअली 0 to 2 ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, इसको निकाल देते हैं हम लोग, 0 to 2 ये लेते हैं, दिस इज 0 to 2, ये है 0 to 2, इसको ले लेंगे x इक्वल टू 0, माय बैड। तो 0 to 2 ये रहेगा, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरा सेकंड कंडीशन है, और दिस इज माय थर्ड कंडीशन। तो अभी थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, इट इज लेस देन p/2 इज लेस देन 0, तो p इज लेस देन 0। अभी f ऑफ 0 क्या होगा, देखो f ऑफ 0 ले रहे, देखो यहाँ पे f ऑफ 2 ले लिया था, अब f ऑफ 0, इफ आई टेक f ऑफ 0, क्या f ऑफ 0 क्या रहेगा, आई विल टेक, क्या होगा मेरा वैल्यू p², यहाँ पे देखो p², ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा p² माइनस 2p प्लस 2, p² माइनस 2p प्लस 2, और देखो ये क्या आया था अपने, ये तो अपना दोस्त है ही 3, यस और नो। अच्छा ये 3 कैसा आया था अपन ने, v2 का वैल्यू, एंड दैट वैल्यू आर गोइंग टू चेक फॉर एवरीवन। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, सो व्हाट इज द आंसर दैट आई विल गेट, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यस और नो। अब इसके बाद क्या आएगा मेरे को, p² प्लस 2 आया ना, प्लस 2 है कि 3 है, प्लस 2 है, सॉरी, प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो आई विल गेट p² माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। गाइस p² माइनस 2p का सम रूट्स क्या रहेगा, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, स्प्लिट कर सकते क्या, कैन वी स्प्लिट, यस नो, यस, नहीं, अगर नहीं कर सकते तो डायरेक्ट p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² प्लस 4ac अपॉन 2a, so I will get p is equal to 2 plus minus 8 is 2 root 2 upon 2. So can you tell me what are the two values of p that I'll get? P is equal to 1 plus root 2 and p is equal to 1 minus root 2. अब बताओ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 1 plus root 2 will be less than equal to 0 और greater than equal to 0, greater than, but अपने को क्या चाहिए, less than equal to कंडीशन है, तो this is the value that will satisfy, yes or no. So now tell me the values. The values of p are, so p is 5 plus root 10 and 1 minus root 2. This is an IIT JEE Advanced past year question. One of the most important questions. ये एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वन क्वेश्चन, डिपेंडेंट ऑन कोई भी वैल्यू लो तुमको, वो 3 की जगह 4 लेने का करो, इट विल स्टिल सेटिस्फाई द कंडीशन। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। देखो यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया है ना, वी आर टेकिंग द सेम वैल्यू, और यहीं पे डाउट रहेगा 100%, सब लोग को यही डाउट रहेगा। टेक एनी वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई द कंडीशन, 0 और 4 की, टेक एनी वैल्यू, टेक 1, टेक 2, टेक 3, कुछ भी लो, 3 ले, सेफर साइड, कोई भी वैल्यू लो, सब्स्टिट्यूट करो एंड सी इफ इट इज having the condition. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? So we'll stop for the day. Next lecture में we'll be starting mostly maximum and minimum value will be starting. Again domain range के ऊपर रहेगा. And I think next more 2 lectures and we'll be done with the chapter. ठीक है? चलो. We'll stop for the day.